अच्छा बेटा, ये लास्ट हमने डिस्कस किया था आइसोमरिज्म, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो है ये हमने डिस्कस किए थे। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में तीन टाइप्स आ जाती हैं। चेन आइसोमरिज्म, चेन आइसोमर्स कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। और डिफरेंस किस वजह से आएगा? ड्यू टू डिफरेंट चेन लेंथ। जैसे हमने एग्जांपल्स ली थी ब्यूटेन की, और C4H10 में ब्यूटेन एंड मिथाइल प्रोपेन, दीज आर chain isomers. Then positional isomers, where position of functional group or branch differs. For example, butene or but1ene and but2ene. So these are two structural positional isomers. इसी तरीके से methyl group की position अगर हम change करते हैं, if we change the position of methyl group, then it would be 2-methyl pentane and 3-methyl pentane. And at the end, the last type of structural isomerism is functional isomers. And functional isomers are those isomers which have same molecular formula but different structure due to different functional group. So if functional group differs, then we call them functional isomers. For example, the simplest example for functional isomers are alkenes and cycloalkanes, right? और फिर हमने कुछ examples जो हैं last में मैंने आपको लिखवा दी थी कि alkenes and cycloalkanes, alcohol and ether, aldehyde and ketone, carboxylic acid and esters. So for example, let's suppose if we have 1, 2, 3 carbon atoms. This is an alcohol. Alcohol with 3 carbon atoms. So the molecular formula is C3H7OH, right? Or C3H8O. This is the molecular formula, and the name of the alcohol is propanol or propane 1-ol. ठीक है, so ये तो alcohol हो गया. Now we can draw this molecular formula in another way, and this would be 1, 2, let's suppose, or third carbon आपने oxygen and then this carbon. ठीक है, so these kind of organic compounds in which we have an oxygen atom which is connected to 2 R groups. Although this is not part of A levels chemistry, but बाज़ isomerism में आपको इसकी examples मिलेंगी, और कई जगहों पे questions में mention होता है, name given होते हैं, but फिर भी आपको idea होना चाहिए. तो ये जो इस टाइप के structures होते हैं जिसमें ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के साथ 2 R group alkyl groups attached है, so these kind of structures are known as ethers. ये ether कहलाते हैं, और ethers functional group is oxygen. ठीक है, तो ऑक्सीजन के साथ अगर दोनों तरफ R group attached है, then this type of organic compound is known as ether. अब अगर आप यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच करें, so CH3, CH2, CH3. So if we count carbon, hydrogen and oxygen, it would be same formula, C3H8O. So alcohol, and this particular ether is known as methyl, ethyl. ठीक है, इसको नाम किस तरह से देंगे? पहले आप मतलब दोनों तरफ के R ग्रुप्स को अलग अलग सेपरेटली नेम देंगे. So this is ethyl, methyl, ether. ठीक है जी, तो we can just simply say that propanol and ethyl methyl ethers they are functional isomers. They both are functional isomers. हाँ जी, क्लियर है बेटा यहाँ तक बात? ठीक है जी. और इसी तरीके से कार्बोनाइल की फिलहाल अभी मैं एग्जांपल नहीं दे रहा, बट एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम. लेट्स सपोज कार्बोक्सिलिक एसिड 1, 2, 3, 4. You know, this is CH3, CH2, CH2, C4H8. अगर आप काउंट करें C4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, C4H8O2. This is a carboxylic acid. This is the functional group for carboxylic acid, C double bond O, OH. This particular carboxylic acid is known as butanoic acid. This is known as butanoic acid. Now we can draw a functional isomer of butanoic acid, which would be an ester. And esters, they have structure just like ethers. Like ethers में oxygen functional group है, और esters में functional group क्या होगा? C double bond O, और इसमें भी दोनों sides पर
R ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। So this is the functional group of esters. अब लेट सपोज आपने यहाँ पे एक कार्बन लगा दिया CH3 और बाकी 2 कार्बन, 4 कार्बन कर लेते ना हमने, CH2 CH3। अब अगर हम काउंट करें, so 3 4 5 6 7 8, again this is 4 carbons 8 hydrogen 2 oxygen, and this time it is an ester। और इसको ईस्टर्स को नाम आप किस तरह से देते हैं ये हम आगे ऑर्गेनिक में, मतलब ईस्टर्स की जब नेमिंग पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे तो वहां डिस्कस भी हो जाएगा, बट आई थिंक ये ध्यान में होगा आपके कि इसको सिंपली आप जब नाम देंगे तो जो अल्काइल पार्ट है which is connected to oxygen, the carbon chain which is connected to oxygen, this is known as, यानी ये जो पार्ट है इसको आप नाम देंगे as an alkyl, so methyl। and जो ईस्टर वाला पार्ट, this is the part which we call ester, so this would be named as O8, methyl propanoate, methyl propanoate, ठीक है जी। so they both are functional isomers of each other, so these are few examples of functional isomers। और ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है ये कंप्लीट हो गया हमारा। हाँ जी, इसमें कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन, क्लियर है? जी सर। अच्छा, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स बेसिकली क्या है? स्टीरियो आइसोमर्स, जैसे लास्ट टाइम भी हमारी बात हुई थी, स्टीरियो आइसोमर्स आर बेसिकली दोज कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर, but different orientation of atoms in 3 dimensions, or different 3-dimensional arrangement of atoms, different 3-dimensional arrangement of atoms, ये जिसको आप सिंपली कह सकते हैं कि different 3-dimensional arrangement of atoms or different arrangements of atom in space, different arrangement of atoms in space in 3 dimensions. So these kind of isomers which have same molecular formula, same structure, molecular formula same hoga, just like structural isomers, they have same molecular formula, but they also have same structure. Same structure means के same type of groups would be attached to carbons, but difference would be their arrangement in 3 dimensions. 3D arrangements जो है वो atoms की different होगी। For example, एक structure में अगर कोई एक atom out of the plane है तो दूसरे structure में वही atom into the plane चला गया, तो हम कहेंगे कि space में arrangement जो है वो different हो गई, ठीक है। तो this kind of isomerism is known as stereoisomerism। और इसकी फिर हमने बात की थी कि there are 2 different types of stereoisomers, ठीक है। स्ट्रक्चर स्टीरियोआइसोमर्स की 2 टाइप्स हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सो देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। स्टीरियो आइसोमर्स की 2 डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। नंबर 1 इज geometrical isomerism, which is also known as cis-trans or EZ isomerism, ठीक है जी। So geometrical isomerism और cis-trans isomerism और EZ isomerism, these are all names for the similar type of isomerism, ठीक है। Now geometrical isomerism, it arises due to restricted rotation, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि दी geometrical isomerism, it arises to restricted rotation. Geometrical isomerism, it arises due to restricted rotation of atoms, means के
those structures in which there is restriction on rotation. ठीक है, वो कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, वी आर गोइंग टू सी दोज स्ट्रक्चर्स, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जस्ट सिंपल ये समझना है कि दोज स्ट्रक्चर्स व्हिच हैव रिस्ट्रिक्शन इन देयर रोटेशन, जहां पे रोटेशन जो है फ्री रोटेशन नहीं होगी, कंप्लीटली फ्री रोटेशन नहीं होगी, सो वो जो स्ट्रक्चर्स होंगे दोज स्ट्रक्चर्स विल एक्सिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. तो इट अराइजेस ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन. अब थोड़ा सा हम जरा इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या है, ताकि ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाए, देन फिर हम इसकी एग्जांपल्स लेंगे. So let's suppose if we have this alkane, okay, then we have 2 chlorine atoms and 4 hydrogen atoms. Draw this chlorine with another color. Okay, so let's suppose ये आपके पास, now this is an alkane with 2 halogen atoms. So this is a halogenoalkane. अब अगर आप इसको नाम देते हैं, so this is 1,2-dichloroethane, 1,2 dichloroethane. ठीक है जी, this is 1,2-dichloroethane. एंड अब अगर लेट्स सपोज मैं इस 1,2-dichloroethane, अच्छा अब यहाँ पे क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज आपको समझनी है कि if all the atoms are connected to each other through single covalent bonds, then main जो एक पॉइंट आप ध्यान में रखें कि in these kind of structures there would be free rotation. ठीक है, if all the carbon atoms are connected to each other through single bonds or sigma bonds in a non-cyclic structure. It must be a non-cyclic structure. इसकी भी लॉजिक आगे चल के बात समझ में आएगी. In a non-cyclic structure, ठीक है, if all the atoms are connected to each other through single bonds in non-cyclic structure, like this one, it is a non-cyclic structure. ठीक है, cyclic structures कौन से होंगे जिसमें कार्बन एटम्स जो है वो रिंग फॉर्म में अटैच हो जाएंगे. So this is a non-cyclic structure. So if all the atoms are connected to each other through single bonds in a non-cyclic structure, then there will be free rotation, or there will be no restriction on rotation. So there will be free rotation. ठीक है, मीन्स के आप इस एटम को यहाँ पे 3 डायमेंशनल जो अरेंजमेंट है एटम्स की वो मैटर नहीं करती. फॉर एग्जांपल वी कैन ड्रॉ दिस 1,2-dichloroethane इन दिस वे. नाउ आई एम ओनली ड्राइंग क्लोरीन एटम्स. ठीक है, तो आपने जस्ट अज्यूम कर लेना है कि बाकी पोजीशंस पे हाइड्रोजन है. सो लेट्स सपोज द फर्स्ट वन दैट वी ड्रॉ was this one 1,2-dichloroethane, and then we can also draw it in this way. Suppose ये Cl अपनी जगह पे रहा और ये Cl जो है ये स्विच कर गया, ये रोटेट कर गया. So we are saying that it is completely allowed. Means के this carbon atom, this particular carbon atom, it rotates and the Cl moves on the other side. ठीक है जी. So there is no difference between structure A and structure B. Likewise, we can also draw it in this way, that this Cl remains, this Cl moves downwards, and this Cl remains at the top. So these 3 structures, they are all same structures. Means के आप सिंपल यहाँ पे ये करें कि क्लोरीन जो है ये फ्री रोटेशन के थ्रू मूव कर रहे हैं. जब तक सिंगल बॉन्ड है, these chlorine atoms, they can rotate freely. Either this chlorine can move upward or downward, and the other chlorine can move upward or downward. So there is free rotation. ठीक है जी. So free rotation है. Chlorines can easily rotate. और इसी तरीके से आप इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी बना सकते हैं. Let's suppose both the chlorine atoms move downward. अब इसमें क्या हुआ, पूरा मॉलिक्यूल रोटेट कर गया. ठीक है. So this chlorine moves down, this carbon atom rotates, and this carbon atom also rotates, and both the chlorine atoms are now at the downside. So these 4 structures, A, B, C, and D, these are all same structures. ठीक है, because there is no restriction on rotation. तो फ्री रोटेशन है तो दोनों कार्बन एक साथ भी रोटेट कर सकते हैं,
दोनों कार्बन सेपरेटली भी रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई मतलब आप कह लें कि इसकी एग्जांपल हम जस्ट सिंपल इस तरह से लेते हैं कि लेट्स सपोज इफ वी हैव दिस वन वुडन लॉग, ठीक है, ये आपके पास एक वुडन लॉग है और सिमिलरली ये आपके पास एक सेकंड वुडन लॉग है। नाउ इफ वी कनेक्ट दीज टू वुडन लॉग्स विद एन आयरन नेल, ठीक है, लेट्स सपोज ये आपके पास कोई आयरन नेल है जिसके थ्रू आपने इन दो वुडन लॉग्स को जो है वो आपस में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। दिस आयरन नेल इज पासिंग थ्रू दीज टू वुडन लॉग्स। तो अब when they are connected to one iron nail, तो what can happen कि आप सिंपली इस ये जो लेट्स सपोज जो टॉप पे वुडन लॉग है, दिस इज ए एंड दिस इज बी, सो ए जो है वो फ्रीली रोटेट कर सकता है, आप बी को जो है वो फिक्स करके ए को रोटेट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही बेटा मेरी? ए कैन इजीली रोटेट विदाउट मूविंग बी। हाँ जी, ये क्लियर हो रहा है पॉइंट कि अगर हम बी को फिक्स रखें, बी इज फिक्स, वी कैन इजीली रोटेट ए, ठीक है जी सर। क्लियर है ये पॉइंट सबको? जी। अच्छा, और अब अगर लेट सपोज हम इसमें दो आयरन नेल्स जो है वो फिक्स कर दें, ठीक है, लेट सपोज इफ वी हैव टू आयरन नेल्स इंस्टेड ऑफ वन, नाउ इफ वी हैव टू आयरन नेल्स, तो व्हाट वुड हैपन? अब अगर आप ए को बी को फिक्स करके, लेट सपोज आप बी को फिक्स करके ए को रोटेट करने की कोशिश करेंगे, तो क्या ये रोटेट होगा? जस्ट आपने थोड़ा सा यहाँ पे इमेजिन करना है कि अगर बी को हम मतलब फिक्स रखें और ए को रोटेट करने की कोशिश करें, देयर आर टू आयरन नेल्स, दो आयरन नेल्स है, ये इसको आप इस तरह से भी ध्यान में रख सकते हैं। लेट्स सपोज हम इनको थोड़ा सा डिस्टेंस पे बना लें अगर, तो लेट्स इफ दिस इज वन आयरन नेल, ठीक है, सो बोथ दी लॉग्स कैन मूव फ्रीली, आप ए को रोटेट कर सकते हैं, बी को रोटेट कर सकते हैं, बट अब हम यहाँ पे अगर दो आयरन नेल्स फिक्स कर देते हैं, तो अब अगर आप बी को फिक्स करके ए को रोटेट करने की कोशिश करेंगे तो दिस इज नॉट पॉसिबल। हाँ, आप दोनों को रोटेट कर सकते हैं, पूरा स्ट्रक्चर रोटेट होगा, बट ऐसा नहीं होगा कि बी जो है वो फिक्स रहे और ए को जो है वो आप रोटेट कर लें। फॉर दैट ये फिर आपको ब्रेक करना होगा पहले, ठीक है। तो हम कहते हैं कि जब तक एक सिंगल आयरन नेल थी तो देयर वाज फ्री रोटेशन, बट जैसे ही आपने दो आयरन नेल्स फिक्स की तो नाउ देयर इज रिस्ट्रिक्शन ऑन रोटेशन, ठीक है। अब क्या आ गया? रिस्ट्रिक्शन आ गई है ऑन रोटेशन। तो जस्ट लाइक दिस एग्जांपल सेम गोज विद दिस, जो हमने ये ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, इसमें भी सेम ये चीज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्योंकि ऑल द कार्बन एटम्स आर सिंगली बॉन्डेड, सो देयर इज फ्री रोटेशन, ठीक है। ये जो कार्बन एटम्स हैं ये फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी, दीज आर ऑल सेम स्ट्रक्चर्स। जी क्लियर है ये? जी सर। ठीक है, अब लेट सपोज अब अगर हम दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं, if we have a carbon carbon double bond, तो ड्यू टू दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और यहाँ पे अब क्या होगा, लेट सपोज आपने दो ग्रुप्स अटैच कर लिए, H H Cl Cl, now this is 1,2 dichloroethene, 1,2 dichloroethene, this is 1,2 dichloroethene. So in 1,2 dichloroethene, now there is a double bond between two carbon atoms, and whenever there is a double bond between carbon atoms, then there is no free rotation around this carbon carbon double bond, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे अगर लेट सपोज आपके पास दोनों क्लोरीन एटम्स जो हैं ये एक ही पोजीशन पे हैं, यानी एक साथ आपको नजर आ रहे हैं बिलो दी कार्बन एटम्स, तो अब अगर लेट सपोज मैं स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज करूं, लेट सपोज इफ वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर लाइक दिस, कि जी ये एक Cl ऊपर चला गया और एक Cl स्टिल जो है वो अपनी सेम पोजीशन पे है, और देन हमसे पूछा जाए कि whether these two structures are similar, let's suppose 1,2 dic, this is structure A and this is structure B, so we would say that these two structures are not similar. There is no way that we can convert A into B, because यहाँ पे क्या हुआ है कि आपने B को फिक्स करके A को लेट सपोज फिक्स करके आप बी को रोटेट कर, इसको सेकंड कार्बन को रोटेट कर रहे हैं, और सेकंड कार्बन को जब रोटेट करेंगे तो इसका Cl जो है ये अपवर्ड मूव हो जाएगा, तो देयर इज नो वे कि आप इसको इस तरह से कन्वर्ट कर सकें, या तो ये पूरा मॉलिक्यूल रोटेट होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि एक कार्बन अपनी जगह पे फिक्स रहे और दूसरा कार्बन जो है वो रोटेट करते,
तो सिंपली यहाँ पे क्या है, देयर इज restriction on rotation. And what kind of rotation? Rotation within the molecule. Within the molecule rotation. कि आप एक कार्बन को फिक्स करके सेकंड कार्बन को रोटेट नहीं कर सकते हैं. दिस इज अलाउड कि आप अगर लेट्स सपोज मैं यही स्ट्रक्चर इस तरह से ड्रॉ करूं कि ये दोनों क्लोरीन एटम्स जो है दे मूव अपवर्ड, सो दिस इज कंप्लीटली अलाउड. ठीक है, ये पूरा मॉलिक्यूल अगर आप रोटेट करते हैं, दिस होल मॉलिक्यूल, इफ दिस होल मॉलिक्यूल रोटेट्स, तो देन ये दोनों क्लोरीन एटम्स जो हैं ये अपवर्ड आ जाएंगे. सो वी कैन जस्ट से दैट लेट्स सपोज अगर ये स्ट्रक्चर सी है तो वी कैन से दैट ए एंड सी आर सिमिलर, but A and B are not similar, C and B also are not similar. ठीक है, तो आप किसी एक पर्टिकुलर कार्बन को जो है वो रोटेट नहीं कर सकते पूरे मॉलिक्यूल में से. दिस इज नॉट अलाउड ड्यू टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. तो अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर कार्बन को रोटेट करना है तो फॉर दैट पर्पज यू हैव टू ब्रेक दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. जब तक ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इंटैक्ट है, we cannot move a particular carbon atom or we cannot rotate a particular carbon atom. free rotation allow नहीं है. तो अब ये जो स्ट्रक्चर ए एंड बी है, अगर आप ए और बी को देखें, हम फिर दोबारा से इनको ड्रॉ करते हैं. Let's suppose if we look at structure A and B, so in structure A both the chlorine atoms were on the same side, and the structure B both the chlorine atoms are on the opposite side. So we can say that structure A and B, they have same molecular formula, which is C2H2Cl2. They have same structure. Like for example, this particular carbon is connected to a hydrogen and a Cl, and this particular carbon is connected to a hydrogen. And in the other structure again, this carbon is connected to a hydrogen and Cl, and this carbon is connected to a hydrogen and Cl. So this is a similar structure, same structure. Same molecular formula, same structure, but different arrangement of atoms in space. Different arrangement of atoms in space. तो अगर आप देखें तो यहाँ पे in structure A, both the carbon atoms, they have chlorine on the same side. So यहाँ पे spatial arrangement क्या है? What is the three-dimensional arrangement? That both the chlorine atoms, they are on the same side, means के they are present on the same side. But in second structure, in structure B, both the chlorine atoms are on the opposite side. ठीक है, तो इनके planes different हो गए. Now they are on the different planes. तो हम सिंपल कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर A में और B में जो एटम्स का अरेंजमेंट है इन स्पेस, ये डिफरेंट है. Although we are not drawing 3D structures, and in A levels आपको geometrical isomerism में 3D structures बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, but इसको सिंपल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि in structure A both the chlorine atoms are on the same side, in structure B both the chlorine atoms are on the opposite side. So we can say that this is a different arrangement of atoms in space. Atoms की space में जो arrangement है वो different हो गई है. So now these two are different structures, they are not same structures. क्योंकि atoms की spatial arrangement different है, तो ये दोनों different structures count होंगे. तो और अगर structures different हैं तो obviously इनके names भी different होंगे. तो for example structure A, that would be called, जैसे हमने इसको previously नाम दिया था, this was 1,2-dichloroethene, and this is also 1,2-dichloroethene. And the difference is क्योंकि यहाँ पे spatial arrangement different है, तो the structure in which both the chlorine atoms are on the same side, we call it cis 1,2-dichloroethene, and the structure in which both the chlorine atoms are on the opposite side, we call it trans 1,2-dichloroethene. ठीक है जी, तो जिसमें दोनों क्लोरीन एटम सेम साइड पे होंगे, दैट वुड बी, या दोनों लाइक एटम्स सेम साइड पे होंगे, दैट वुड बी स्ट्रक्चर सिस. और जहां पे दोनों ऑपोजिट साइड पे, बेटा माइक म्यूट कर लें, जहां पे दोनों ऑपोजिट साइड पे होंगे वो क्या कहलाएंगे? ये ट्रांस आइसोमर्स कहलाएंगे. ठीक है, तो सिस एंड ट्रांस सिंपली क्या है? एटम्स की अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पेटियल अरेंजमेंट को. ठीक है, एंड सिस आइसोमर्स दे आर आल्सो नोन एज Z.
जो हमने EZ की बात की थी, तो we can also call it Z12 dichloroethene, and trans is also known as E. तो EZ isomerism में अगर आप इसको नाम देंगे, नॉर्मली ये लेवल्स में सिस ट्रांस पे ही आता है, बाजू का क्वेश्चंस में EZ मेंशन होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए। मतलब E जो है वो आप जस्ट सिंपल इसको ऐसे ध्यान में रख सकते हैं, E stands for aniline, so means both the chlorine atoms are on the opposite side। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इसको, although they are Latin words but we are not using those terms। ठीक है, आप जस्ट सिंपल इसको इस तरह से ध्यान में रख लें कि दोनों ऑपोजिट होंगे तो E, और दोनों सेम साइड पे होंगे तो Z। हाँ जी, यहाँ तक बात क्लियर है। हाउ टू ड्रॉ सिस ट्रांस आइसोमर्स किस तरह से पहचानना है, इसमें कोई कंफ्यूजन? सर इसमें इसका सेम स्ट्रक्चर कैसे? स्ट्रक्चर तो सर डिफरेंट है ना। स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि मतलब आप कह लें कि कार्बन एटम्स पे जो ग्रुप अटैच्ड है वो सेम होने चाहिए। तो अगर आप देखें दोनों केसेस में कार्बन एटम के साथ जो ग्रुप्स अटैच्ड है वो तो सेम है। जी सर। ठीक है ना, तो हम कहेंगे कि सेम स्ट्रक्चर है। जैसे अब हमने जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पढ़े थे उसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे कार्बन के साथ जो एटम्स अरेंज्ड है वही डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल इन दिस पर्टिकुलर केस कार्बन के साथ जो है वो एक तरफ CH2 है, एक तरफ ऑक्सीजन है, मतलब दिस पर्टिकुलर कार्बन इज कनेक्टेड टू CH2 इन ऑक्सीजन NOH। ठीक है, और यहाँ पे एटम्स डिफरेंट अरेंज्ड है। तो इस टाइप के जो आइसोमर्स होते हैं ये फिर हम कहेंगे कि स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया है। ठीक है, इनमें ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे स्ट्रक्चर सेम है। जैसे फॉर एग्जांपल दिस कार्बन इज कनेक्टेड, मैंने पहली बात की, दिस कार्बन इज कनेक्टेड टू H and Cl, and this carbon is connected to H and Cl, then this carbon is connected to H and Cl, और यहाँ पे ये कार्बन भी Cl और H। तो एटम्स तो सेम ही अरेंज्ड है, सिर्फ क्या है उनका अरेंजमेंट स्पेस में, और वो भी 2D में आपको नहीं लगेगा, जब आप 3 डायमेंशंस में देखेंगे तो उनका स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट है। क्लियर हो गई बात? जी सर। चले अब इसकी कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। लेट्स सपोज we have this structure। ठीक है, now this is butene। ठीक है, this is कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, 2 और 3 के दरमियान है, तो this would be called butene। ठीक है, now how to find out, पहली चीज एक और यहाँ पे ध्यान में रखें कि not all the alkenes would exhibit geometrical isomerism, because geometrical isomerism के लिए एक कंडीशन तो आपने ऊपर बता दी थी कि it rises due to restricted rotation, एंड सेकंड कंडीशन अब यहाँ पे आपको एक और चीज नोट करनी है कि फॉर एग्जांपल अब ये जो पर्टिकुलर अल्कीन है दिस विल एक्सिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। पहली बात तो ये होगी कैसे, एक तो आपने देखा कि जी यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, दैट मीन्स के इट मस्ट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बिकॉज रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है। बट रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के साथ आपको एक और चीज भी नोट करनी है कि ये जो पर्टिकुलर कार्बन एटम है, सर दो ग्रुप अटैच होने चाहिए ना। जी, तो ये जो पर्टिकुलर कार्बन एटम है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो अब आपने सिंपल ये देखना है कि जो आपका sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, मींस जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, इट मस्ट बी कनेक्टेड टू 2 डिफरेंट ग्रुप्स, बोथ द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे सिंपल जो चीज आपको डबल बॉन्ड के साथ साथ एक और चीज जो नोट करनी है कि बोथ दी sp2 hybridized carbon must be connected to 2 different groups to exhibit cis trans isomerism। यानी लेट्स सपोज किसी भी अल्कीन में अगर आपने ये देखना है कि whether it can exhibit geometrical isomerism or not, तो in addition to double bond तो obviously अल्कीन है तो डबल बॉन्ड तो होगा, but in addition to double bond there must be uh, 2 different groups attached to the sp2 hybridized carbon। so for example अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो सर ये थोड़ा sp2 और sp3 का थोड़ा क्लियर करा देंगे कॉन्सेप्ट। हाँ बेटा, इसका लेक्चर है पूरा बॉन्डिंग के अंदर, वहां से आप जस्ट सिंपल देख लो, ये बिल्कुल सिंपल है।
sp2 आपने जो सिंपल काउंट करने होते हैं कार्बन के, आपने सिग्मा प्लस लोन पेयर्स काउंट करने होते हैं। तो इस कार्बन को आपने देखना है, इस पे आप देख लें कि कितने सिग्मा प्लस लोन पेयर्स हैं। तो 1 2 और तीसरा इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है, तो 3 सिग्मा है। तो जब भी सिग्मा प्लस लोन पेयर इज इक्वल टू 3 है, पाई बॉन्ड काउंट नहीं करते, जस्ट सिंपल सिग्मा प्लस लोन पेयर काउंट करें। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर हाइड्रोजन है, हम इसकी बात कर रहे हैं कार्बन, सॉरी, ये जो पर्टिकुलर कार्बन है, आपने अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखनी है तो इसके सिग्मा प्लस लोन पेयर काउंट कर लें। तो 1 2 और तीसरा इसके साथ क्या है, हाइड्रोजन। तो ये टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, लोन पेयर तो 0 है। तो जब सिग्मा प्लस लोन पेयर इज इक्वल टू 3, तो दैट मीन्स कि ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। इफ सिग्मा प्लस लोन पेयर इज इक्वल टू 4, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। इफ सिग्मा प्लस लोन पेयर इज इक्वल टू 2, तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। जस्ट बॉन्ड्स आपने काउंट करने हैं, ठीक है। बाकी मैं वो लेक्चर आपके साथ शेयर कर दूंगा जिसमें हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन की थी, तो वहां से वो क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा जी, तो आपने सिंपल ये देखना है, अगेन मैं इसको स्ट्रक्चर को यहाँ पे बना देता हूँ कि जिन कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है उनके साथ 2 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होने चाहिए। तो लेट्स से ये स्ट्रक्चर है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया। अब हम सिंपल इस कार्बन को देखते हैं पहले कि इसके साथ कौन से 2 ग्रुप्स अटैच हैं। तो इट हैज दिस R group which is CH3 and hydrogen which is not showing in the skeletal structure, so it has 2 different groups. Similarly, this particular carbon is connected to an R group which is again CH3 and a hydrogen. So both the carbon atoms are connected to 2 different groups. That means this structure will exhibit geometrical isomerism because दोनों conditions fulfill हो रही हैं, डबल बॉन्ड भी है और 2 डिफरेंट ग्रुप्स भी हैं दोनों कार्बन एटम्स के साथ, ठीक है। तो अब अगर मुझे इसके स्केलेटल फॉर्म में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ड्रॉ करने हो तो किस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। आप सिंपल क्या करेंगे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पहले शो कर दें, ठीक है जी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और सिस में क्या होगा, दोनों CH3 सेम साइड पे होंगे, तो आपने दोनों CH3 अपवर्ड और डाउनवर्ड ड्रॉ कर दें या अपवर्ड ड्रॉ कर दें। नाउ दिस इज सिस ब्यूट, cis ब्यूट टू इन, दिस इज cis ब्यूट टू इन। और इसी का ट्रांस वर्जन बनाना होगा, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और एक मिथाइल ग्रुप आपने अपवर्ड शो कर दिया, एक डाउनवर्ड शो कर दें या इसको रेसिप्रोकेट कर दें, यहाँ वाले को आप इसको अपवर्ड कर दें और इसको डाउनवर्ड कर दें। सो नाउ दिस इज ट्रांस ब्यूट टू इन। बिकॉज मैंने अक्सर देखा है बच्चों को स्केलेटल में सिस ट्रांस बनाने में प्रॉब्लम आ रही होती है, तो इसका सिंपल सा इलाज है कि आप पहले डबल बॉन्ड ड्रॉ करें, देन फिर आप 2 लाइक ग्रुप्स को एक साथ और फिर दोनों को ऑपोजिट शो कर दें, तो ये सिस और ट्रांस ब्यूट टू इन बन गए। क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद चलें अब एक और स्ट्रक्चर देखें। Now let's say if this is the structure, now this is propene, and if they ask you कि जी propene can exhibit geometrical isomerism or not, जी ये geometrical isomerism exhibit करेगा या नहीं करेगा? नहीं सर। ठीक है, नहीं करेगा। उसका रीजन क्या है? सर हर ईच कार्बन के बाद सर मतलब 2 ग्रुप्स अटैच नहीं है। हाँ, इसमें सिंपल आपको अगर मतलब एक तो यहाँ पे सिंपल ये केस है कि आप ध्यान में रखें कि अगर आपका जो टर्मिनल कार्बन है, टर्मिनल कार्बन जो चेन का लास्ट कार्बन एटम है, ठीक है, इफ द टर्मिनल कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज और इफ द टर्मिनल कार्बन इज इन्वॉल्व्ड इन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी जैसे ये टर्मिनल कार्बन है, दिस इज टर्मिनल कार्बन, so if terminal carbon is involved in double bond formation or if it is sp2 hybridization, तो फिर तो आप क्लियरली कह सकते हैं कि आपको स्ट्रक्चर देखने की जरूरत ही नहीं है, आप जस्ट सिंपली राइट अवे आप रिफ्यूज कर सकते हैं कि दिस विल नॉट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बिकॉज अगर टर्मिनल कार्बन पे डबल बॉन्ड है देन दैट मीन्स के इसके साथ दोनों जो बॉन्ड्स ये बना रहा है, ये किसके साथ बना रहा है, हाइड्रोजन के साथ। इट हैज 2 हाइड्रोजन एटम्स जो कि सेम ग्रुप्स हो गए, और सेम ग्रुप्स हो गए तो इसका मतलब अब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ऑल्दो द अदर कार्बन एटम इट हैज 2 डिफरेंट ग्रुप्स CH3 एंड H, बट हमने कंडीशंस क्या रेज की थी कि बोथ द sp2 कार्बन हाइब्रिडाइज्ड कार्बन्स मस्ट बी कनेक्टेड टू 2 डिफरेंट ग्रुप्स, दोनों के साथ 2 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। तो अगर एक के साथ सेम है एक के साथ डिफरेंट है तो ऐसा स्ट्रक्चर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करेगा। उसका रीजन क्या है, बिकॉज आप अगर यहाँ पे देखें, मैं इसको स्ट्रक्चर को ड्रॉ करूं
तो ये कार्बन के साथ दोनों हाइड्रोजन और ये CH3 and this is H. So this is propene in structural form and this is let's say structure A. अब अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ, आपने जी यहाँ तो डबल बॉन्ड है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगी, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन विद इन द मॉलिक्यूल है, बट ये जो मॉलिक्यूल है ये ओवरऑल तो रोटेट कर सकता है। तो अगर हम इसको ऐसे शिफ्ट कर दें CH3 और H, तो स्ट्रक्चर A and B they are similar or they are different? They both are similar because if we rotate this molecule A completely, अगर आप इसको पूरे molecule को rotate करें, तो then we can easily get this structure B. ठीक है, because this carbon is connected to 2 hydrogen atom, ये same hydrogens हैं, तो आप ये मतलब find out नहीं कर सकते कि कौन सा hydrogen जो है वो above है या कौन सा hydrogen below है। ठीक है, so the structure A and B they both are similar because अगर आप structure A को completely rotate करते हैं तो you get structure B और structure B को rotate करते हैं तो you get structure A। हाँ जी, क्लियर हो गई ये बात? तो कंडीशन क्या है कि दोनों कार्बन्स के साथ 2 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होने चाहिए। इसमें कोई कंफ्यूजन? सर जी सर A और B आइसोमर्स नहीं होंगे ना फिर? A और B तो सेम स्ट्रक्चर है ना बेटा, ये आइसोमर्स नहीं है। जी ठीक है, A और B जो है ये सेम स्ट्रक्चर्स है, ना तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं ना ये स्टीरियो आइसोमर्स हैं, दे बोथ आर सेम स्ट्रक्चर्स। ठीक है सर अगर प्रोपीन के टर्मिनल कार्बन पे अगर ब्रांच है तो हो जाती मिथाइल की। बेटा प्रोपीन में तो टर्मिनल कार्बन पे ब्रांच आ ही नहीं सकती ना। प्रोपीन सर पे आप टर्मिनल कार्बन, एक हाइड्रोजन हटा के वहां पे मिथाइल लगा दे तो फिर वो प्रोपीन नहीं रहा ना बेटा, फिर वो ब्यूटीन बन जाएगा। जैसे ये है, आप जो बात कह रहे हो, जैसे ये है, अगर मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दूं आपके कहने के मुताबिक, तो यहाँ पे अब क्या बन गया ये? अब तो ये ब्यूटीन बन गया ना। जी सर। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अच्छा जी, तो चलें, ये तो हमने सिंपल, अब एक दो स्ट्रक्चर्स में आपको दे रहा हूँ, आपने इनको खुद से ड्रॉ करना है। ड्रॉ दी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वेयर पॉसिबल। ठीक है, सिस ट्रांस आइसोमर्स आपने ड्रॉ करने हैं। चलें, अच्छा जी, तो लेट सपोज स्ट्रक्चर A1 हो गया, 2, ये 3 स्ट्रक्चर्स हैं, आपने इनके सिस ट्रांस आइसोमर्स ड्रॉ करने। ठीक है, इन स्केलेटल फॉर्म। ड्रॉ दी सिस ट्रांस आइसोमर्स फॉर दोस व्हिच, आप ये बना के जो है वो आपने मुझे सेंड करने हैं। ठीक है, ड्रॉ दी सिस ट्रांस आइसोमर्स फॉर दोस मॉलिक्यूल्स व्हिच कैन एग्जिबिट सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। जी बेटा, आप जरा देख लें स्ट्रक्चर आप, ठीक है, मोस्टली तो सही बनाया, बट एक दफा आप इसको जरा कंफर्म कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल 1 है, तो स्ट्रक्चर नंबर 1 में ये 2 कार्बन हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, और इस कार्बन की अगर हम बात करें तो इसके साथ एक R ग्रुप है और हाइड्रोजन है। इस पर्टिकुलर कार्बन के साथ भी R ग्रुप है और इधर भी हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब दिस वुड एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, 1 विल एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और 2 में अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर कार्बन है, इट हैज बोथ द R ग्रुप, सेम R ग्रुप CH3, तो यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। 3 में दोनों कार्बन एटम्स, these 2 carbons have different groups attached. ठीक है, let's suppose this carbon number 1, it has this R group with 2 carbon atoms and a hydrogen. और इसकी अगर बात करें तो it has an R group with 1 carbon atom and an R group with 2 different carbons. So R1 and R2 means कि ये दोनों alkyl groups different है। ठीक है, R1 में 1 कार्बन की चेन है, R2 में 2 कार्बन की चेन है। तो स्ट्रक्चर नंबर 3 would also exhibit ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तब अगर हम 1 के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ड्रॉ करें सर तो 2 का क्यों नहीं बन सकता सर? 2 में बेटा ये जो कार्बन है इसके साथ दोनों R ग्रुप सेम हो गए ना। ये भी लेट सपोज इफ दिस इज R1 तो ये भी R1 ही है, दोनों पे एक जैसे ग्रुप्स अटैच हैं, CH3 ठीक है ना। तो आपने सिंपल ये देखना है कि जिस कार्बन पे दोनों सेम ग्रुप्स अटैच हैं, इसके साथ क्योंकि दोनों सेम ग्रुप्स अटैच हो गए तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एग्जिबिट नहीं करेगा। तो अब अगर हम 1 के लिए स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ड्रॉ करते हैं तो 1 के केस में दिस इज 1 2 3 4 5 और 2 और 3 के दरमियान डबल बॉन्ड है। तो लेट्स से ये कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 आ गए।
ठीक है, और हमने 1 इसके साथ ये CH3 अपवर्ड बना दिया, और इसका जो R ग्रुप है इसको भी आपने अपवर्ड बना दिया। ठीक है, तो ये आपके पास, या जस्ट सिंपल आपने दोनों R ग्रुप्स जो है वो अपवर्ड शो कर दिए। ठीक, तो 1 2 3 4 5 बोथ द R ग्रुप्स आर ऑन दी सेम साइड। सो ये क्या कहलाएगा, सिस ज्योमेट्री। और ट्रांस ज्योमेट्री में 1 2 3 4 1 2 3 4 5, और यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। तो अब अगर आप देखें तो दोनों R ग्रुप्स डिफरेंट आ गए, ये R ग्रुप और ये R ग्रुप दोनों डिफरेंट आ गए। सो दैट मीन्स कि ये ट्रांस ज्योमेट्री हो गई, दिस इज ट्रांस एंड दिस इज सिस, बिकॉज इसमें दोनों R ग्रुप्स जो हैं ये सेम साइड पर है। एक ये R ग्रुप और ये R ग्रुप दोनों सेम साइड पर है, इसमें दोनों R ग्रुप डिफरेंट साइड पर हैं, तो ये ट्रांस ज्योमेट्री कहलाता है। स्ट्रक्चर 3 में अगर हम देखें तो यहाँ पे टोटल कितने कार्बन है स्ट्रक्चर में, 1 2 3 4 5, या 1 2 3 4 5 6। ठीक है, टोटल 6 कार्बन की चेन है। और कार्बन नंबर अगर आप इसकी नंबरिंग करेंगे तो इसको नंबरिंग कहाँ से देंगे, 1 2 3, इधर इस एंड से भी थर्ड पे कार्बन है, थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, और यहाँ से स्टार्ट करें तो 1 2 3, इधर से भी 3 पे आ रहा है। बट क्योंकि अगर हम राइट साइड यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 3, तो आपके R ग्रुप को भी स्मॉल नंबर मिल रहा है। R ग्रुप इज ऑल्सो कनेक्टेड टू सेम, मतलब मैं ये नंबरिंग की बात कर रहा हूँ, नाम किस तरह से देना है आपने स्ट्रक्चर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 6 कार्बन है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस एंड, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6. So this is, and third carbon is an R group attached and methyl group as a branch. So 3 methyl hex 3 ene, 3 methyl hex 3 ene। अब अगर मुझे इसके सिस ट्रांस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हो तो 3 methyl hex 3 ene 1, इसमें आपने सिंपल ये 2 कार्बन आ गए। ठीक है, नाउ दिस इज थर्ड, फ्रॉम दिस साइड हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो 3 methyl 1 2 3, और ये इसका मिथाइल ग्रुप 1 2 3 4 5 6, दोनों जो R ग्रुप्स हैं वो आपने अपवर्ड कर दिए। ठीक है, और अब अगर मैं एक R ग्रुप को देखें, इसमें इस कार्बन के साथ एक ये CH3 ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, और ये एक इथाइल ग्रुप, और ये जो फोर्थ कार्बन है इसके साथ ये एक इथाइल ग्रुप। तो अगर हम दोनों इथाइल ग्रुप को अपवर्ड करेंगे तो सिस ज्योमेट्री बन जाएगी। ठीक है, कार्बन नंबर 3 और 4 के दोनों जो इथाइल ग्रुप्स हैं इनको मैंने अपवर्ड कर दिया, तो ये सिस ज्योमेट्री। और अगर दोनों इथाइल ग्रुप्स को ऑपोजिट कर देंगे, 1 2 3 4 5 6, नाउ दिस इज ट्रांस ज्योमेट्री। ठीक है, इसमें थोड़ी सी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, और मतलब जस्ट सिंपल आपने दोनों इथाइल ग्रुप्स, आपने सिंपल यहाँ पे ये देख लिया कि जो दो आपके डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स हैं दोनों के साथ इथाइल ग्रुप अटैच है। तो अगर हम इथाइल ग्रुप को अपवर्ड शो करेंगे तो सिस ज्योमेट्री, और इथाइल ग्रुप को डाउनवर्ड, एक को अपवर्ड एक को डाउनवर्ड शो करेंगे तो ट्रांस ज्योमेट्री बन जाएगी। हाँ जी, क्लियर है ये बात, इसमें कोई कंफ्यूजन?